किस कदर खौफजदा है। मैं जितनी देर से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं जब से ये सवाल कर रही हूँ तब से हाथों का यही हालत है, मसल रही हैं जैसे कोई इंसान घबरा रहा होता है या जैसे कोई इंसान पछता रहा होता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए, काश मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाए। किस हाल में ये माँ बैठी है जिनके जिगर के टुकड़े गए, माँ को सब्र नहीं आएगा। ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕਦੀ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ अच्छा 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके नजायज तलकात है। अच्छा जी, आज से 2 साल पहले अच्छा उन्होंने उस लड़की की शादी भी कर दी। हमारी नाक नहीं रहती मलक बरादरी की, तेली बरादरी की। हमें लोग ताने मेने देते हैं। इसी बिना पर उन्होंने अपनी बहन से उसे फोन करवाया रात तकरीबन 1-2 बजे। उसने कहा क्या बात है, उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे वो मेरी बात सुन जाओ। रात के 2 बजे? जी जी जी। तो अली महबूब ने पूछा नहीं कि मैं इस टाइम तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लिए आऊँ? वाकई था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहन से या नहीं था? गाँव के लोग कहते हैं कि उनको शक था। असल में अरशद उर्फ बग्गू, अच्छा। इसके खुद के ताल्लुकात थे। क्या जी, इसके खुद के उनकी बच्ची के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। या आप इल्जाम लगा रहे हो कि सच है? मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। असल में ना उसने खुद को बचाने के लिए ना ये सारा माजरा किया है। बग्गू ने जी कि मेरा नाम ना आए जी बिल्कुल। और मैं शो हूँ, इससे पहले गेम चेंज कर दो। अली महबूब की वालिदा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। जाहिर है जिसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उस माँ की क्या हालत होगी, उस माँ का दिन कैसे गुजरता होगा, उस माँ की रात कैसे गुजरती होगी, ये वो माँ जानती है जिस पर ये बुरा वक्त आया है। माँ जी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। माँ जी, अली महबूब के मुतल्लिक ਤੁਹਾਨੂੰ इतला कदों मिली सी? ਤਹज्जुद ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ। तहज्जुद दी नमाज पढ़ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾँ जी, ਕੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਠਾਇਆ ਵੇਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਮ ਬਚਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਆਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੂਆ ਮਾਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਹੋ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੁਮਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੁਲਹਾੜੀ? ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਬੱਚੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲਾ ਸੀ,
ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਜਦਾਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਮਸਾਏ? ਮਾਂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਆਖੀ ਦਾ ਸੀ ਮਸਾਏ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਿੱਦੀ ਸੀ। ਓ ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਜ ਵੀ 20 ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ 21 के 20 याद नहीं 20 अब के जरा हाथों 24 की तक। लैंग्वेज चेक करें। जिस माँ पर बीत रही है ना, ये वो माँ जानती है कि वो इस उम्र में किस कदर परेशान है, किस कदर खौफजदा है। मैं जितनी देर से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं जब से ये सवाल कर रही हूँ तब से हाथों का यही हालत है, मसल रही हैं जैसे कोई इंसान घबरा रहा होता है या जैसे कोई इंसान पछता रहा होता है कि काश वो वक्त वापस आ जाए, काश मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाए। किस हाल में ये माँ बैठी है। अल्लाह, मैं ये कहूंगी अल्लाह ताला इनको हौसला दे, अल्लाह इनको सब्र दे, मगर जिनके जिगर के टुकड़े गए उन माओं को सब्र नहीं आता, उन माओं की रातें नहीं गुजरती सो के। इंसाफ चाहिए बेटा। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ 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 ਰੋਜ਼ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਦਾ ਕਦੀ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਦੇ? ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ? ਸੋਹਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਸੀ? 19 ਸਾਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਦੀ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? 15ਵਾਂ ਸਾਲ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। बेवा का की हाल है? बेचारी का की हाल होना। हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके नजायज तलकात है। अच्छा जी। आज से 2 साल पहले अच्छा, उन्होंने उस लड़की की शादी भी कर दी। हमारी नाक नहीं रहती मलक बरादरी की, तेली बरादरी की। हमें लोग ताने मेने देते हैं। इसी बिना पर उन्होंने अपनी बहन से उसे फोन करवाया रात तकरीबन 1-2 बजे। उसने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आओ, मेरी बात सुन जाओ। रात के 2 बजे? जी जी जी। तो अली महबूब ने पूछा नहीं कि मैं इस टाइम तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लिए आऊं? जब उधर ले गए तो उन्होंने ड्रामा रचाया कि गाँव के मुअज्जर लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा। कि अली महबूब हमारे घर में आया है, दीवार फलांग कर, इसे रोको। इन्होंने कहा हम रोकेंगे, आप ने बताया हम रोकेंगे। उसके बाद जो अरशद बगू है उसने फोन किया इमरान विर्क साहब को। अच्छा। कि विर्क साहब हमने अली का तमाम काम कर दिया है। इमरान विर्क कौन है? वो साथ वाले गांव का चौधरी है। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बहन से या नहीं था? गांव के लोग कहते हैं कि उनको शक था। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी मकतूल के मामू हैं, मकतूल के वालिद साहब हैं और कुछ मजीद फैमिली मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम डिटेल से बात करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन जी। अल्ताफ हुसैन जी। अल्ताफ साहब, इस गांव का नाम क्या है? जहांगीरपुरा जी। जहांगीरपुरा? जी जी। और ये थाना सदर की हदूद में? जी जी जी, थाना सदर शेखपुरा। ठीक। आप मामू लगते हैं? जी जी। मामू के हाथों में बच्चा पैदा भी होता है, जवान भी होता है जी, शादियां भी होती हैं जी, आगे से साहिब औलाद भी होता है जी, ये सब कुछ आपने देखा? जी। पूरा नाम बताएं मुझे मकतूल का। अली महबूब अल चिराग दीन। अली महबूब वल चिराग दीन। जी जी। कितनी उम्र है अली महबूब की? 37-38 साल। क्या बना बेचारे के साथ इतना जुल्म? जुल्म इस तरह हुआ कि जिन्होंने कत्ल किया है, ठीक है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमें शक है कि हमारी बहन के साथ इसके नजायज तलकात है। अच्छा जी।
आज से 2 साल पहले अच्छा उन्होंने उस लड़की की शादी भी कर दी। ठीक है तकरीबन कितनी देर होगी शादी की तीनों भाई इमरान? ठीक है 2 साल हो गए। जी जी, फौरन ही उन्होंने शादी कर दी। ठीक है, जब पता चला था? जी जी। अच्छा, इस गांव के रहने वाला उनका एक रिश्तेदार है जिसका नाम है अरशद उर्फ बग्गू। अरशद उर्फ बग्गू? जी जी। अच्छा। उसने जिन्होंने कत्ल किया है उनके साथ साजबाज होकर कहा कि हमारी नाक नहीं रहती मलक बरादरी की, तेली बरादरी की। अच्छा जी। कि अली महबूब हमारी बच्ची के साथ उसके नजायज तलकात थे। ठीक है। हमें लोग ताने मेने देते हैं। उन्होंने शादी भी कर दी। ठीक है। उन्होंने इस बिना पर उस दिन अली महबूब ने गांव से पता कर लें थ्रेशर मशीन चलाई हुई थी बाहर खेतों में। अली महबूब ने? जी। ठीक है। उधर अपनी गंदम की गहाई कर रहे थे। अच्छा जी। इसी बिना पर उन्होंने अपनी बहन से उसे फोन करवाया रात तकरीबन 1-2 बजे। अच्छा। अली महबूब आया, उसने कहा क्या बात है? उन्होंने कहा हमारे दरवाजे पे आओ, मेरी बात सुन जाओ। 1 मिनट, बहन ने फोन किया? जी। अली महबूब को? जी जी, उनकी बहन ने। उनकी बहन ने? हाँ जी, जो कातिल है। मेरी बात सुन जाओ। बात सुन जाओ। ठीक है। जब जे उधर गली में गया तो अरशद उर्फ बग्गू, साजिद, उनके हामिद, अच्छा, अहमद, उसके भाई लड़की के, एक उसका बहनोई, ठीक है, जिसका नाम खावर है, अच्छा, एक उनका रिश्तेदार बग्गू, ठीक है। इन्हों पांचों ने पकड़ा और अपने खींचकर घर में ले गए। अली महबूब का साफा और जूती उनके सामने जो नाली है उसमें गिरा हुआ मिला। 1 मिनट, कितने बजे कॉल की? तकरीबन उन्होंने 2 बजे, 2:15 बजे कॉल की अली दोपहर महबूब के? रात को। रात के 2 बजे? जी जी जी। तो अली महबूब ने पूछा नहीं कि मैं इस टाइम तुम्हारी कौन सी बात सुनने के लिए आऊं? उन्होंने कहा मेरी बात सुन जाओ, मेरे भाई मुझे डांट रहे हैं कि तू उसको फोन कर। अच्छा। उसने कहा क्यों डांट रहे हैं? उनके इधर अली महबूब की हवेली है, इधर उसने खड़े होकर देखा कि उनके घर में रौला पड़ा हुआ है। ठीक है। वो इधर से थोड़ा सा आगे गया। आ रही थी? जी जी। अच्छा। वो खींच कर उधर ले गए अपने घर में। ठीक है। जब उधर ले गए तो उन्होंने ड्रामा रचाया कि गांव के मौजूद लोगों को इकट्ठा किया। अच्छा। कि अली महबूब हमारे घर में आया है दीवार फलांग कर। ओहो। जिसमें हाजी यासीन साहब ने इस गांव दे, उन्होंने बेटे ने शाह साहब, ठीक है, एक अब्दुल्ला साहब, अच्छा, ठीक है जी, मौजूद, एक अली महबूब का वालिद और उसकी वालदा, ठीक है। इनको उन्होंने अपने घर बुला लिया। अच्छा। घर बुलाकर कहने लगे कि ये हमारे घर आता है, इसे रोको। इन्होंने कहा हम रोकेंगे, आपने बताया हम रोकेंगे। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने धक्के मारकर इन चौधरियों को भी और अली महबूब के वालिद को, वालदा को, और उन्होंने अपने वालिद और वालदा को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करके अली महबूब के साथ तशद्दुद शुरू कर दिया। अच्छा जी। जब उन्होंने तशद्दुद किया तो अली महबूब की बहन चीखो पुकार सुनकर भाग कर गई। दीवार फलांग कर उसने देखा कि अली महबूब के सर में कुहाड़ी लगी है। अच्छा जी, कुल्हाड़ी लगी है, खून बह रहा है। उसने चीखो पुकार की, उनके दीवार के साथ ईंटों का ढेर है। जब लोगों ने उधर से झांक कर देखा तो वो पांचों उसको रस्सियों से बांध कर, गले में रस्सी डालकर, पाँव में रस्सी डालकर, उसके साथ करंट लगाकर करंट की तार के साथ तशद्दुद कर रहे थे। नहीं, 1 मिनट जी। रस्सियों से बांधी पूरी जी जी जी। गला भी जी, गला भी बांधा? हाँ जी, टांगे भी, हाथ भी बांध दिए? जी जी। फिर उसके बाद करंट लगा रहे? जी जी, करंट लगा रहे थे उस मुख्तलिफ हिस्सों पे? मुख्तलिफ हिस्सों पे। आप देख सकते हैं, तस्वीर है हमारे पास मोबाइल में, आप अच्छा, देख लें। अच्छा जी जी। और इस दौरान वो मर चुका था या चीख रहा था? चीख रहा था, लोग इकट्ठे हो गए थे। जब लोगों ने दरवाजा खड़काया, उनके वालिद ने खड़काया, उन्होंने बोला कि अब्बू जी 2 मिनट काम हो गया है। अच्छा जी, काम हो गया है, बस 2 मिनट सब्र करें। उसके बाद जो अरशद बग्गू है उसने फोन किया इमरान विर्क साहब को। अच्छा। कि विर्क साहब हमने अली का तमाम काम कर दिया है। इमरान विर्क कौन है? वो साथ वाले गांव का चौधरी है। चौधरी है? जी जी। मतलब क्या चौधरी है? गांव का चौधरी है? कोई PMLN का है? कोई डेरेदार है? क्या है? डेरेदार है।
अच्छा। जमीन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार है, हमारा भाई है। हाँ। हाँ, सब लोगों का, गरीबों का कोई मसला हो उनका ख्याल करता है, उनकी बात सुनता है। अच्छा, जी तो फिर उनको बताया कि काम हो गया, जी मतलब कत्ल कर दिया। जी, हमने कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा अब मैं क्या कर सकता हूँ, ना कत्ल करते मुझे पहले बुला लेते। अच्छा ठीक है। जी, अच्छा, फिर जब इन्होंने दरवाज़ा खोला दुआ फलांग कर, तो अली महबूब का काम तमाम था। वो 5 लोग घर में मौजूद थे। यानी कि उसकी जान निकल चुकी थी। जान निकल चुकी थी। फिर वो सब भाग गए। वो खातून किधर है जिसने फोन करके बुलाया था? वो खतून उनकी बहन है, उनको पता है किधर है। वो ये भी बताएं कि वो उस वक्त घर में थी या नहीं थी। वो बयान देते हैं कि घर में नहीं थी तो अली महबूब को कैसे पकड़ लिया, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो उसके पीछे कैसे गया, ये हमें बताएं ना। अब ये सारी बात आपने बताई है जो वकुआ हुआ है, जो हुआ है जानमंद बताया। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बहन से या नहीं था? हाँ जी, ताल्लुक था या नहीं था? हमारा गांव चीचों की मलियां, हमें नहीं मालूम था या नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि उनको शक था। अच्छा जी, घर में आते जाते कभी देखा था? ये तो गांव वाले बता सकते हैं ना, किसी ने देखा है कि नहीं देखा। इनसे पूछ लें, जो इमरान गुजर साहब हैं, आजम विर्क साहब हैं, इनसे पूछ लो। सारे गांव वाले लोग मौजूद हैं। साहब को माइक दे, जी जी, पकड़ा दे।